Hello students. So students, as you know that we are completing chapter number 10, that is straight line. Okay students, till that part, means till this part, we had covered all the concept which is required to solve the questions. Okay, means we have studied how to find the slope of a line, how to find the inclination of a line, okay, how to find the angle between two lines, okay, and after that we have studied the general forms of the equation of a line. We have studied 5 forms. First one was point slope form, second one was point form, third one was intercept slope form, fourth one was intercept form, and the last one is normal form. Okay, and after that we have studied about how to find the distance of a point from a line, and after that we have studied how to find the distance between parallel lines. Okay, so it means that we have covered all the concepts which are required to solve the question of this chapter. Okay, so today we will discuss few important questions of this chapter, then this chapter will be over. Okay, so students, now I am discussing exercise 10.3. Here I can mention we are discussing exercise 10.3. Exercise 10.3. Okay, so as I told you in the previous part, 10.3 NCERT, as I told you in the previous part that first 7 to 8 questions are very simple. So we will start from the question number 9. Okay, we will start from the question number 9, student. I hope you all having your math NCERT book. So I am going to write the answer only. Okay, so question number 9 is that the angle between the lines is, find the angle between the lines is under root 3x plus y equal to 1 and x plus under root 3y equal to 1. Okay, in the question there will be two lines. Line 1 is under root 3x plus y equal to 1 and line 2 is x plus under root 3y इक्वल टू 1. ठीक है, ये दो लाइन दी हुई हैं और इन्हीं दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना है. ठीक है, तो सपोज दिस लाइन इज दिस एंड द सेकंड लाइन इज लाइक दिस. ठीक है, सपोज इट इज L1, इट इज L2 एंड हमें इनके बीच का एंगल फाइंड करना है. तो मैंने आपको एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला बताया था, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. सो फॉर फाइंडिंग द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन वी शुड नो व्हाट इज देयर स्लोप. ओके, सपोज उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा. उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा सपोज, एंड थीटा इज एक्यूट एंगल. तो फॉर लाइन, फॉर L1 इज स्टूडेंट, फॉर लाइन 1 दैट इज अंडर रूट 3x प्लस वाई इक्वल टू 1. इसका जो स्लोप होगा, सपोज इट स्लोप इज m1, इसका जो स्लोप है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय m1, क्योंकि एंगल निकालने के लिए हमें स्लोप पता होना चाहिए. तो इस लाइन का जो स्लोप आएगा स्टूडेंट दैट विल बी माइनस रूट 3. ठीक है, मैंने आपको बताया कैसे स्लोप निकालते हैं डायरेक्टली. स्लोप इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y. कोफिशिएंट ऑफ x रूट 3 है, कोफिशिएंट ऑफ y 1 है, तो इसका स्लोप आ जाएगा माइनस रूट 3. ओके, if you will go through the previous exercises, previous part, then you can easily understand. ठीक है, now for L2, the second line is x plus under root 3y equal to 1. ठीक है, तो इसका जो स्लोप आएगा स्टूडेंट, सपोज इसका स्लोप है m2. ठीक है, and its slope will be minus 1 by root 3. ठीक है, as I told you, slope is equal to माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y. यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x 1 है और y का रूट 3 है और माइनस है तो माइनस 1 बाय रूट 3. तो दोनों के स्लोप हमें पता चल गया और हमें भी पता है कि अगर दो लाइन का स्लोप पता चल जाए तो उनके बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं. तो हम क्या लिखेंगे, लेट थीटा दैट इज एक्यूट बी द एंगल बिटवीन द लाइन्स. ठीक है, बी द एंगल बिटवीन द लाइन्स. मान लिया कि जो थीटा है वो एक्यूट है और यही दोनों लाइन्स के बीच का एंगल है. सो वी हैव स्टडीड वन थिंग दैट वी नो दैट अगर थीटा एक्यूट है, वी नो दैट इफ थीटा इज एक्यूट देन tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2. ठीक है, ये हम कह सकते हैं. अच्छा, अब m1 m2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, तो tan थीटा इज इक्वल टू, पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज.
सो m1 हमारा कितना है स्टूडेंट, -√3, इट इज -√3 माइनस m2 हमारा है -1/√3, ठीक है। एंड सेम वैल्यू नीचे पुट कर देते हैं, तो इट इज -√3 एंड इट इज -1/√3, ठीक है। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट अगर हम लोग, तो ये -√3 और ये +1/√3, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये √3 कैंसिल और माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो 1 + 1, ठीक है, इट विल कम। सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, इसको सॉल्व करें अगर हम लोग, तो ये आएगा, अगर √3 हमारा एलसीएम हो जाए तो ये -3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 ये आएगा, ठीक है। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू, अब ध्यान दो, ये आ जाएगा -2/√3, ये तो आया ऊपर से और 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ 2 इज कैंसिल्ड, सो व्हाट इज लेफ्ट, tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3, tan थीटा इज -1/√3, तो ये मॉड लगाए तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब बिकॉज थीटा हमने एक्यूट लिया था, तो tan के 30 में उसकी वैल्यू 1/√3 होती है, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। तो अगर एक वैल्यू 30 है तो दूसरे एंगल क्या होता है, 180 माइनस थीटा, क्योंकि मैंने बताया था लाइंस के बीच का 2 एंगल होता है, अगर एक थीटा है तो दूसरा 180 माइनस थीटा होगा, तो 180 माइनस थीटा विल बी 180 माइनस 30, that is equal to 150 degree. So the angle between the lines will be, angle between the lines will be 30 degree और 150 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री और 150 दोनों हो सकता है, ठीक है। 30 एक्यूट है, 150 ऑब्ट्यूज है, तो हम लोग को यही फाइंड करना था, 2 लाइंस गिवन थे और उनके बीच का एंगल फाइंड करना था, तो उसके लिए पहले हमें स्लोप फाइंड करना होता, तो पहले हमने स्लोप फाइंड कर लिया और मान लिया कि उनके बीच का जो एंगल है, पहला एंगल वो एक्यूट है, तो हमने एक्यूट एंगल निकालने का फॉर्मूला बताया था, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 + m1 m2, सारी वैल्यूज पुट कर दिए, जब सारी वैल्यूज पुट कर दिए तो थीटा हमारा 30 आ गया, तो अगर थीटा 30 है तो 180 माइनस थीटा विल बी 150 डिग्री, सो दीज टू विल बी द एंगल, one angle will be 30 and the another angle will be 150, one angle will be acute and the another angle will be obtuse, ठीक है। इसको चाहो तो आप रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 30 को क्या बोल सकते हैं हम लोग, π/6 और वो 5π/6, ठीक है। तो चाहे डिग्री में लिखो चाहे उसमें, दोनों में सेम ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसके बाद के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। बाकी के सारे क्वेश्चन बहुत इजी है स्टूडेंट, आप अगर आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो आपसे लग जाएगा, ठीक है। सो आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 10.3। Now student, the next question, that is question number 15 of exercise 10.3। जो मैंने 9 डिस्कस किया उसके बाद के सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप फॉर्मूले की मदद से भी जाओगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन दैट इज y इक्वल टू mx प्लस c मीट्स इट एट द पॉइंट -1, 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्या बोल रहा है स्टूडेंट, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन
y इक्वल टू mx प्लस सी। तो मान लीजिए एक मैंने पहले एक्स वाई प्लेन बनाया और एक इक्वेशन है दैट इज y इक्वल टू mx प्लस सी। मान लो एक लाइन है जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, क्या बोल रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है, मीट इट एट द पॉइंट -1, 2, ठीक है, -1, 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। ठीक है, तो लाइन कुछ ऐसी भी हो सकती है, लाइन के बारे में हमको कुछ पता नहीं कि लाइन कैसी होगी, लेकिन मैं एक जनरल फिगर बनाया था मैंने, दैट इज अ लाइन, और इससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं वो पॉइंट क्या है, -1, 2 पर लाइन पे मिलती है। तो देखो -1, 2 हमारा, अगर हम इसको सही से ड्रॉ करें स्टूडेंट्स, अगर हम इसको सही से ड्रॉ करें तो लाइन कुछ ऐसा नहीं होगा। लाइन कैसा होगा, लाइन कुछ ऐसा होगा, मैं दिखाता हूं आपको, देखिए लाइन कुछ हमारा ऐसा होगा। ठीक है, ये हमारी लाइन होगी, और क्वेश्चन ये बोल रहा है इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, और इस लाइन पर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है जो कि इस लाइन पे कहां पे मिलता है, -1, 2 पे, -1, 2 पे। तो सपोज दिस पॉइंट इज P, दिस इज ओरिजिन और दिस इज अ लाइन। ठीक है, ये है क्वेश्चन की एक लाइन है दैट इज y इक्वल टू mx प्लस सी। जब ओरिजिन से इस लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो ये परपेंडिकुलर इस लाइन को इस वाले पॉइंट में मिलता है, दैट इज -1, 2। -1, 2 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए लाइन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ m एंड c। ठीक है, तो लाइन क्या है स्टूडेंट, द इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ द लाइन जो दिया हुआ है दैट इज y इक्वल टू mx प्लस सी ना। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सपोज ये हमारी लाइन है और इस पे हम लोग ओरिजिन से क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। वी ऑल नो दैट कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0, 0। ठीक है, अब हमें करना क्या है स्टूडेंट, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी, मीट इट एट द पॉइंट -1, 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड c। अच्छा, इससे जो इस लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, इससे जो इस लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है वो इस लाइन को -1, 2 पे मिलता है। तो हमें ये बताना है कि m और c की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान दो स्टूडेंट, व्हाट कैन यू से अबाउट द स्लोप ऑफ OP, स्लोप ऑफ OP, सपोज इसका स्लोप मैंने मान लिया m1। ठीक है, इसका स्लोप मैंने m1 मान लिया। स्लोप ऑफ OP हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, निकाल सकते हैं। अच्छा, y2 इन दोनों में से किसी को भी x1 y1 मान लीजिए, तो मान लीजिए x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 0 अपॉन -1, 0, -1 0, दैट इज -2 आएगा। तो स्लोप ऑफ OP हमने निकाल लिया। ठीक है, स्लोप ऑफ OP हमने निकाल लिया। अच्छा, अब ये जो OP है दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी, और जैसे दिख रहा है लाइन हमारी क्या है, स्लोप ऑफ लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी, इसका स्लोप क्या होगा स्टूडेंट, विल बी m ओनली, विल बी m, क्योंकि ये हमारा स्लोप ही होता है तो इसका स्लोप m दिया हुआ है। एंड बिकॉज लाइन एंड OP, ये लाइन और ये OP परपेंडिकुलर है, बिकॉज OP is perpendicular to the line, so by using the concept of perpendicularity, the slope of line into the slope of OP is equal to -1। दो, अगर OP और लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। अच्छा, स्लोप ऑफ लाइन इज m, ठीक है, एंड स्लोप ऑफ OP हमने निकाला है दैट इज -2। सो व्हाट कैन यू से अबाउट द स्लोप ऑफ लाइन, सो स्लोप ऑफ लाइन दैट इज m विल बी इक्वल टू
-1/-2, -1 कट गया, ये आ गया 1/2। तो m की वैल्यू हमें मिल गई 1/2। ठीक है, m की वैल्यू हमें मिल गई स्टूडेंट 1/2। ओके, अच्छा m तो मिल गया, अब हमें c फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमें m भी निकालना था और c भी निकालना था। अब ध्यान दो, ये जो लाइन है y = mx + c, इसमें जो c होता है ये y इंटरसेप्ट होता है, c जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि ये लाइन जो है वो कहां से पास कर रही है स्टूडेंट, ये लाइन यहां से पास कर रही है -1,2 से। ठीक है, -1,2 से ये लाइन पास कर रही है और इसका स्लोप हमको पता है, तो हम लोग क्या c नहीं निकाल सकते हैं? हम लोग c निकाल सकते हैं। इसका कैसे निकालेंगे c? देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो है y = mx + c। ठीक है, y = mx + c ये हमारा इक्वेशन है। और ये जो लाइन है, एंड लाइन पासेस थ्रू, कहां से पास कर रही है स्टूडेंट? ये लाइन -1,2 से भी तो पास कर रही है, तो ये -1,2 इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो व्हाट कैन यू से अबाउट c? सो अगर ये वैल्यू हम लोग लाइन में पुट कर दे, दैट इज y = mx + c, हमको y कितना दिया हुआ है? 2, m हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, दैट इज 1/2, x की वैल्यू -1 और +c, सारी वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 = -1/2 + c आएगा। तो c की जो वैल्यू होगी दैट इज 2 + 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो 5/2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने m और c की वैल्यू निकाल लिया। m कैसे निकाला? पहले मैंने इस OP जो था वो लाइन के परपेंडिकुलर था, तो OP का स्लोप निकाल लिया। लाइन का स्लोप m दिया ही हुआ है, अगर दो चीजें परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, तो वहां से लाइन का स्लोप मिल गया 1/2। अच्छा, अब ये लाइन जो थी वो -1,2 से पास कर रही है, इसका मतलब वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो x और y की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, और m तो पता ही चल गया था आपको, तो सारी वैल्यू पुट किया तो c की वैल्यू 5/2 आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। चलिए, नोट डाउन इट। Now next question is also very good. Question number 16. ठीक है, so we will discuss question number 16 after this. Student, all the questions are given in the your NCERT 10.3, so that's why I am not writing the question. Okay, I hope that you all having your maths book so that you can understand which question I am going to solve. So after this question I am going to discuss question number 16 of exercise 10.3. क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 10.3। ठीक है, देखिए, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 16? इफ P and Q are the length of perpendicular drawn from the origins to the line x cos theta minus y sin theta = k cos 2 theta and x sec theta plus y cosec theta = k, तो प्रूव दैट p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर = k स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे दो लाइंस गिवन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 है। द लाइन 1 इज, द लाइन 1 क्या है हमारा? दैट इज x cos theta माइनस y sin theta = k cos 2 theta। ठीक है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज x cos theta माइनस y sin theta माइनस k cos 2 theta। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और लाइन 2 है हमारी। व्हाट इज लाइन 2? लाइन 2 जो है हमारी वो क्या है? x sec theta प्लस y cosec theta
इज इक्वल टू के। ठीक है, ये है। ठीक है, इसको भी एक काम करते हैं, सेक और कोसेक को हम लोग चेंज कर लेते हैं साइन और कॉस में। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं x अपॉन कॉस थीटा प्लस y अपॉन साइन थीटा माइनस के इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करूंगा मैं तो ये आएगा साइन थीटा इंटू एक्स प्लस कॉस थीटा इंटू वाई माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। यानी कि जो इक्वेशन बनेगा हमारा वो बनेगा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा, अब इन्हीं दोनों लाइन की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, इन्हीं दोनों लाइंस की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो क्या है, P एंड Q। ठीक है, तो मान लो सपोज करते हैं कि एक लाइन हमारा ऐसे है कुछ, जैसे कि मान लो मैंने एक डायग्राम बनाया। ठीक है, एक लाइन हमारी ये है और सपोज ये लाइन 1 है हमारी। ठीक है, इस लाइन की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है दैट इज P, और एक दूसरी लाइन है, मान लो इधर भी मान सकते हो, इधर भी मान सकते हो, कहीं भी मान सकते हो। तो मान लो मैं एक दूसरी लाइन ऐसे बना दे रहा हूं, पैरेलल कहीं ही होगी, पैरेलल नहीं है ये दोनों लाइन। ठीक है, तो अगर मैं दूसरी लाइन बना दूं तो वो कुछ ऐसा होगा, और इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगी दैट विल बी Q। ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो किसी भी लाइन की किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, किसी भी लाइन की किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, दैट वाज मॉड ऑफ ax1। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए स्टूडेंट, मैं साइड में लिख देता हूं रिकॉल करने के लिए, ताकि आप अप्लाई कर पाओ। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था ये चीज कि अगर कोई पॉइंट है सपोज P दैट इज x1 y1, और एक लाइन है दैट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस बतानी है, और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो फॉर्मूला क्या होता था, d इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता था। तो ऐसे ही है, मैं दोनों लाइन के केस में तो डिस्टेंस निकालूंगा। तो ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन 1, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन 1। लाइन 1 कौन सी थी हमारे स्टूडेंट, ये, इसकी लाइन 1 से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या ले सकते हैं, d विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन पहली लाइन की ओरिजिन से जो डिस्टेंस दी हुई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू p, मतलब कि d की जगह क्या दिया हुआ है, p। अच्छा, इस क्वेश्चन में a की जगह cos थीटा है, क्योंकि लाइन ऑन ये है, तो cos a की जगह cos थीटा है, और x की जगह x1 पुट करते हैं, और x1 y1 वो पुट करते हैं जहां से डिस्टेंस निकालनी होती है। इसका मतलब डिस्टेंस कहां से निकालनी है, ओरिजिन से। इसका मतलब x1 y1 0 होगा, तो cos थीटा इंटू 0 आ गया, माइनस साइन थीटा इंटू 0 आ गया, और ये बच जाएगा माइनस के cos 2 थीटा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, माइनस के cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट में क्या आता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे इस लाइन का जो कोफिशिएंट है a, दैट इज cos थीटा, यानी कि cos थीटा का स्क्वायर प्लस माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। सिंपली वो फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 0 माइनस 0 प्लस माइनस के cos 2 थीटा का मॉड, और नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो ऊपर बच जाएगा माइनस के cos 2 थीटा का मॉड, और नीचे 1। तो इफेक्टिवली जो p की वैल्यू आएगी स्टूडेंट, वो आएगी के cos 2 थीटा। सपोज ये इक्वेशन नंबर हमारा 3rd है। तो पहले क्या किया हम लोग, पहले लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिए, और हमारा एक इक्वेशन बन गया, दैट इज p इक्वल टू के cos 2 थीटा। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन
फ्रॉम लाइन टू। उसके लिए भी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम जानते हैं d इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में दिया, इस वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है कि सेकंड वाली लाइन की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो q है, तो इसका मतलब d की वैल्यू यहाँ पे q होगी। d एक्चुअल में डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस दी हुई है, दैट इज q। अच्छा, इस वाले के लिए, इस इक्वेशन के लिए हमारा a कितना है, साइन थीटा, और x1 y1 तो अभी भी जीरो है क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू जीरो प्लस कॉस थीटा इंटू जीरो और माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा का मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा सेम चीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज आप समझ सकते हो, इसी फॉर्मूले के हिसाब से लगाया है। इस बार सेकंड इक्वेशन के लिए, लाइन 2 के लिए, ये हमारा लाइन 2 था ना, तो लाइन 2 के लिए a और b साइन थीटा कॉस थीटा है, तो नीचे होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए, आई थिंक ये वाला पार्ट आपने कर लिया हो। पहले जो भी लाइन दी होती है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आसानी रहे। ठीक है, अब देखिए, यानी कि हमारे जो q की वैल्यू मिली है स्टूडेंट्स, जो हमें q की वैल्यू मिली है, सो द वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे तो 1 ही आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 ही होगा, तो 1 आएगा, तो q इज इक्वल टू क्या आ गया, k साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो, जो हमारा ये आया था, p की वैल्यू k कॉस 2 थीटा थी और q की वैल्यू k साइन थीटा कॉस थीटा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको भी साइन 2 थीटा बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसको लिख सकता हूं मैं k इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट q इज इक्वल टू k साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2q इज इक्वल टू k साइन 2 थीटा। ये मैंने इसलिए किया है स्टूडेंट क्योंकि जब दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, हमें क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, हम लोग को ये प्रूव करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो k स्क्वायर तभी आएगा जब दोनों साइड, यहाँ पे cos थीटा 2 थीटा, यहाँ पे sin 2 थीटा, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो राइट हैंड साइड वही आएगा k स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन थर्ड का स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर थर्ड का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा और स्क्वायर ऑफ इक्वेशन नंबर 4, तो ये आ जाएगा 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। इसको मान लीजिए 5वां इक्वेशन, इसको मान लीजिए 6ठा इक्वेशन। अब क्या करना है, अब मैं ये वाला पार्ट इरेज कर दे रहा हूं स्टूडेंट्स। है तो बहुत छोटा क्वेश्चन, ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस आप लोग को करना अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कराना है, इसलिए बार बार इरेज करना पड़ रहा है। ओके, अदरवाइज क्वेश्चन इज वेरी इजी, इट इज फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट ओनली। देखिए, अब हमारा हो गया है जो हमें चाहिए प्रूफ, बस हम किसी तरह ले आते हैं वो चीज जो हमें प्रूव करना होता है अच्छे से इक्वेशन बना के। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 5, अगर मैं इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को ऐड कर दूं तो इक्वेशन नंबर 5 है हमारा p स्क्वायर और इक्वेशन नंबर 6 में क्या है 4q स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड करेंगे तो क्या आएगा k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस k स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो हमारा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी आ गया स्टूडेंट, दैट इज p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर
और इन दोनों में से k स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। एंगल सेम है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1, तो आंसर होगा हमारा p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन इट। Now student, the remaining question of exercise 10.3 that is question number 17 और question number 18। क्वेश्चन नंबर 18 तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 की तरह ही है, और क्वेश्चन नंबर 17 में एल्टीट्यूड का हमको लेंथ ऑफ द वर्टेक्स फाइंड करना है और एल्टीट्यूड की लेंथ बतानी है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड एंड और लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। तो बहुत सिंपल होता है, ये आपको आराम से सॉल्व हो जाएगा। एल्टीट्यूड निकालने के लिए क्या होगा, एल्टीट्यूड किसी एक वर्टेक्स से दूसरे साइड पर ड्रॉ करते हैं, तो इसका मतलब जो एल्टीट्यूड का स्लोप होगा वो अपोजिट वाले साइड की जो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि जो एल्टीट्यूड होगा वो सामने वाली साइड की परपेंडिकुलर होगा, तो उसमें आप परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन निकाल के स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड निकाल सकते हो और स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके उस एल्टीट्यूड का इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 इज वेरी सिंपल। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा फॉर द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन का डिस्कशन है फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, तो उसको ध्यान से पढ़िए। नाउ सी व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग, assuming that straight line works as a plane mirror for a point। कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो किसी पॉइंट के लिए एक प्लेन मिरर का काम कर रही है, तो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि एक पॉइंट और एक लाइन है, उस पॉइंट के लिए वो जो लाइन है वो मिरर का काम कर रही है, तो मिरर के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट का इमेज कहां बनेगा वो हमको फाइंड करना है। मतलब कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स इमेज। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। तो मान लो स्टूडेंट एक लाइन ऐसी है कुछ, और ये पॉइंट है हमारा 1,2। ठीक है, ये लाइन है दैट इज x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, और इस लाइन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का हमें इमेज फाइंड करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर प्लेन मिरर है तो इसका जो इमेज है वो लाइन के दूसरी साइड बनेगा। अच्छा, मान लो कि इस लाइन का जो इमेज है वो इस पॉइंट का जो इमेज है वो इस लाइन के रिस्पेक्ट में दूसरी साइड बनेगा। मान लो उसका इमेज यहां कहीं बनेगा। ठीक है, तो मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। मान लो इस लाइन का जो इमेज है दैट इज h, k। h, k मतलब कि उस इमेज का कोऑर्डिनेट है। इमेज का मतलब कि अगर वो पॉइंट 1,2 है, तो अगर लाइन एज अ मिरर का काम कर रही है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका इमेज कहां बनेगा वो हमको फाइंड करना है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, तो एक काम करिए आप, P है मान लीजिए पॉइंट दैट इज 1,2, लाइन है हमारी x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और मान लिया मैंने लेट q इज द इमेज ऑफ पॉइंट P। तो लिखेंगे लेट q दैट इज h, k इज द इमेज ऑफ पॉइंट P। ठीक है, अच्छा आप क्या करिए, P को Q से ज्वाइन कर दीजिए, कुछ ऐसा। P को Q से आप ज्वाइन कर दीजिए। अच्छा, जब P को Q से ज्वाइन करेंगे आप, तो आपको एक लाइन सेगमेंट मिलेगा दैट इज PQ। अच्छा, PQ अगर कुछ ऐसा होगा स्टूडेंट, अगर ये Q इस P का इमेज है, इसका मतलब ये दोनों ही पॉइंट लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, अगर ये P, आपने क्लास 10 में क्वेश्चन पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड वाला, कि क्लाउड सरफेस से कुछ ऊपर था और क्लाउड पानी के कुछ नीचे था, उसका रिफ्लेक्शन तो क्या होता था। तो आपको पता है जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है। मतलब कि कोई पॉइंट अगर रियल में जितना सरफेस से ऊपर है उतना ही वो सरफेस से नीचे होगा, मतलब कि उतना ही उसका रिफ्लेक्शन भी उतने डिस्टेंस पे होगा। तो अगर ये वाला पॉइंट भी लाइन से जितने ही डिस्टेंस पे होगा, Q वाला भी लाइन से उतने ही डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, मतलब कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी। ठीक है, इसका मतलब ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करेगा। दूसरी चीज, रिफ्लेक्शन हमेशा किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू परपेंडिकुलर ही होता है। मतलब कि ये जो PQ होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। PQ जो होगा वो लाइन के परपेंडिकुलर होगा। इसका ये मतलब हुआ कि जो ये लाइन हुई, ये लाइन इस PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, जब भी रिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं किसी के भी रिस्पेक्ट में, चाहे वो लाइन हो, चाहे मिरर हो, चाहे कुछ भी हो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको लाइन को एज अ प्लेन मिरर मानना है, तो उस पॉइंट का इमेज कहां बनेगा। तो इमेज हमेशा, अगर पॉइंट ऊपर है तो उसका इमेज
लाइन के नीचे बनेगा, ठीक है। और जितना ऊपर है उतना ही वो पॉइंट लाइन के नीचे भी होगा, दैट विल बी इट्स इमेज। अच्छा, जो इमेज होता है दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा। इसका जो इमेज होगा वो नीचे बनेगा, मतलब कि अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये भी इसके परपेंडिकुलर ही होगा, मतलब कि ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है ना। और जब भी हम डिस्टेंसेस की बात करते हैं तो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं। तो P और Q मतलब कि पॉइंट और उसकी इमेज को जो हम ज्वाइन करने वाले जो लाइन सेगमेंट होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन। बस इतना याद रखना है आपको। अगर कोई पॉइंट P है और उसका इमेज है Q, तो P और Q को मिला के जो लाइन सेगमेंट बनेगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन, अगर लाइन उसका मिरर की तरह काम कर रहा है तो। इसका मतलब जो PQ होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन। अच्छा, परपेंडिकुलर भी होगा, और मैंने बोला है कि जितना ये पॉइंट P लाइन से जितना ऊपर है उतना ही ये पॉइंट Q लाइन से नीचे है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट होगा, ये इस पॉइंट को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। सपोज दिस पॉइंट इज O, इसका ये मतलब हुआ सो लाइन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। PQ क्या है, P एक पॉइंट और Q इसका इमेज है। P और Q को ज्वाइन कर दिए तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। उस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा होगा, ये लाइन, और O इसका मिड पॉइंट होगा। तो बाय द मिड पॉइंट थ्योरम या बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम लोग O के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, दैट इज h प्लस 1/2 एंड k प्लस 2/2 होगा, हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये O जो होगा, अगर ये लाइन इस PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइन PQ को बाइसेक्ट भी कर रही है और लाइन PQ के परपेंडिकुलर भी है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो O विल बी द मिड पॉइंट, और ये जो O है स्टूडेंट ये लाइन सेगमेंट पे भी होगा और लाइन पे भी होगा। तो हमने मिड पॉइंट की फॉर्मूला लगा के इस पॉइंट O का कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिया। अच्छा, अगर ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट पे भी है और इस लाइन पर भी है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। तो हम लिख सकते हैं पॉइंट O विल सेटिस्फाई द लाइन, ठीक है। इसका मतलब हमारी लाइन क्या थी, x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम करेंगे क्या स्टूडेंट, हम यहां पे क्या करेंगे, मैं यहां इसको नीचे लिख दे रहा हूं क्योंकि ये स्पेस ले रहा है, ठीक है। ये लाइन है हमारी, दैट इज x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, लाइन, ठीक है। अगर ये पॉइंट O जो है वो PQ पर भी है और लाइन पर भी है, इसका मतलब ये लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्वेश्चन में जहां भी x, इस लाइन में जहां भी x और y होंगे वहां पर आप ये इन दोनों की वैल्यू पुट कर देना। ये जो O है, इस O के ना कोऑर्डिनेट h प्लस 1/2 और k प्लस 2/2 है, और ये O लाइन पर लाई कर रहा है। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पर h प्लस 1/2 पुट कर देंगे और y की जगह पर k प्लस 2/2 पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं तो ये आ जाएगा h प्लस 1/2, x की जगह पुट किया, माइनस 3 इंटू k प्लस 2/2, ठीक है, ये आ जाएगा। और ये जो था हमारा मिड पॉइंट था PQ का, ठीक है। O जो होगा वो PQ का मिड पॉइंट होगा क्योंकि ये लाइन इस लाइन सेगमेंट की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। और ये प्लस 4, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा h प्लस 1 माइनस 3k प्लस 6 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा h माइनस 3k, 1 और 6 7 और 8 15, ये बनेगा। तो यहां से जो h की वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो आएगी 3k माइनस 15, ठीक है। h की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3k माइनस 15। वेट अ मिनट स्टूडेंट, यहां पे -6 होगा, दिस विल बी -6, ठीक है। तो ये -15 नहीं होगा। एक मिनट इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग फिर से सॉल्व कर लेते हैं।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 आएगा, ये होगा h प्लस 1 माइनस 3k माइनस 6 प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा, ये 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं उधर, तो ये बचेगा h माइनस 3k और ये 1 और 8 9 और ये माइनस 3 इक्वल टू 0। तो h इक्वल टू बनेगा हमारा क्या, ये प्लस होगा 3k माइनस 3, ये बना, h की वैल्यू कितनी आ गई 3k माइनस 3। ठीक है, इसको चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 1 भी कर सकते हो। बेसिकली क्या किया था, इसका मिड पॉइंट लिखा है, ये मिड पॉइंट लाइन पर भी है और लाइन सेगमेंट पर भी है, तो ये लाइंस को सेटिस्फाई करेगा। तो x और y की जगह हमने ये o के कोऑर्डिनेट पुट कर दिए, दैट इज h प्लस 1/2 और k प्लस 2/2। तो हमारा पहला इक्वेशन ये आ गया। अच्छा, अब ये जो PQ है और ये लाइन है, दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमने को पता है कि अगर दो लाइंस या दो चीजें आपस में परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो हम पहले स्लोप ऑफ लाइन निकाल लेते हैं। व्हाट इज स्लोप ऑफ लाइन? स्लोप ऑफ लाइन इज, मान लो ये m है, m1 है मान लो, लाइन हमारी है x माइनस 3y प्लस 4, तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा 1/3। मैंने बताया कैसे निकालते हैं, स्लोप इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, तो 1/3 आएगा। ठीक है, अच्छा स्लोप ऑफ PQ क्या होगा स्टूडेंट? स्लोप ऑफ PQ क्या होगा? स्लोप ऑफ PQ विल बी, दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो हम लिख सकते हैं इसको k माइनस 2 अपॉन h माइनस 1, यही होगा, यही तो होगा। अरे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, दोनों में वैल्यू पुट कर दिया, आ गया। तो बिकॉज OP इज PQ इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन इनटू स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू -1। ठीक है, पुट कर सकते हैं ना। अच्छा, अब ध्यान दीजिए आप, स्लोप ऑफ लाइन हमने निकाल लिया है 1/3, स्लोप ऑफ PQ निकाल लिया है k माइनस 2 अपॉन h माइनस 1 इक्वल टू -1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई उधर कर देते हैं या ऐसे कर लेते हैं इसको, k माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो 3h माइनस 3 इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k माइनस 2 इज इक्वल टू -3h प्लस 3 आ गया। ठीक है, या इसको सही से लिखा जाए तो k माइनस, एक मिनट, इसको उधर ले आते हैं तो k इज इक्वल टू -3h प्लस 5। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दीजिए, मान लो ये इक्वेशन नंबर 2 है, अगर हम लोग इक्वेशन 1 से h की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दे तो हमारा मिल जाएगा अननोन वेरिएबल की वैल्यू। अब देखो दो इक्वेशन है ना, तो दो इक्वेशन को चाहो तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, किसी से भी कर लो। तो पहले वाले से, पहले लाइन से हमारा पहला इक्वेशन आ गया और स्लोप वाली चीज से हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। तो पुट द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, मतलब कि h की वैल्यू 1 से निकाल के 2 में पुट कर दे, तो ये k है -3, h की वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट? 3k -3 प्लस 5। सॉल्व करते हैं इसको तो k इक्वल टू -9k प्लस 9 प्लस 5, इसको इधर ले आते हैं तो ये k प्लस 9k इज इक्वल टू 14, तो 10k इज इक्वल टू 14, तो k इज इक्वल टू 14/10 या 7/5। ठीक है, k की वैल्यू 7/5 आ गई, तो h की वैल्यू क्या होगी? सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 h की वैल्यू क्या थी? h की वैल्यू थी 3k माइनस 3, तो h की वैल्यू हो जाएगी, मैं यहां लिख देता हूं, ये वाला पोर्शन तो आपका हो ही गया होगा। तो अगर हम यहां से सॉल्व करें इसको, तो ये h की वैल्यू क्या थी? 3k माइनस 3। ठीक है, k की वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली है हम लोग, दैट इज 7/5, तो 7/5 माइनस 3, तो h की वैल्यू आ गई 21/5 माइनस 3, तो h की वैल्यू आ गई 21 माइनस 15/5, तो h की वैल्यू 6/5। तो
कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या होगा स्टूडेंट? कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू हमने माना था दैट इज h, k, तो ये आ गया 6/5 और ये आ गया 7/5। तो यही क्यू का जो कोऑर्डिनेट है, यही कोऑर्डिनेट जो है वो इमेज है किसका? इस पॉइंट का 1,2 का, ठीक है। तो आंसर विल बी 6/5 एंड 7/5। क्यू के जो कोऑर्डिनेट होंगे वही उसका इमेज होगा, उस पॉइंट का इमेज होगा, मतलब ठीक है। मतलब जो क्यू का कोऑर्डिनेट आया है ना वही उस पॉइंट 1,2 का इमेज है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी आए हैं कि पॉइंट दिया हुआ है और लाइन दिया हुआ है और कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि लाइन जो है वो मिरर का काम कर रही है, तो उस पॉइंट का इमेज बताइए या रिफ्लेक्शन बताइए। क्वेश्चन में रिफ्लेक्शन वर्ड भी आता है, तो रिफ्लेक्शन मतलब इमेज ही हुआ, ठीक है। आपको क्या करना है, मान लो कोई पॉइंट दिया होगा और लाइन दिया होगा और लाइन को आपको मिरर मानना होगा, तो अगर पॉइंट पी ऊपर लेते हो तो उसका जो इमेज होगा वो नीचे होगा, और जितना पॉइंट पी ऊपर होगा उतना ही उसका इमेज नीचे होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर आप PQ निकालते हो, लाइन सेगमेंट PQ, तो जो PQ होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है। और जो लाइन है दैट इज द परपेंडिकुलर, वो उस लाइन सेगमेंट मतलब कि उस इमेज और उस पॉइंट से बनने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। तो पहले आप P और Q की मदद से उसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेना। मिड पॉइंट जो होगा वो लाइन सेगमेंट पे भी होगा और लाइन पर भी होगा, तो अगर उसकी वैल्यू आप लाइन में पुट करोगे तो सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से आपको H और K में एक इक्वेशन मिल गया। अब मैंने बोला है कि जो PQ है और जो लाइन है दोनों ही परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। PQ का स्लोप निकाल लो आप, P आपको पता ही है, Q आपने H K माना है, तो स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, वहां से स्लोप ऑफ PQ मिल जाएगा। लाइन का स्लोप निकालने के लिए आप लगा सकते हो फॉर्मूला दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, तो वहां से लाइन का स्लोप आ जाएगा और दोनों का प्रोडक्ट ही -1 के बराबर होगा। सारी वैल्यूज पुट करोगे, जैसे मैंने यहां किया है, स्लोप ऑफ लाइन निकाला था, स्लोप ऑफ PQ निकाला था, दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, तो यहां से एक दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को आपको सॉल्व करना है, तो चाहो तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो, चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो और H और K की वैल्यू निकाल लो। जो वैल्यू H और K की होगी वही उस पॉइंट का क्या होगा, इमेज, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ H एंड K इज 6/5 एंड 7/5। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट 1,2 का जो इमेज है वो क्या है, तो हम लिख सकते हैं इमेज ऑफ पॉइंट 1,2 इज इक्वल टू 6/5 एंड 7/5। यही इसका इमेज बना था हमने, ठीक है। तो इस तरह इमेज वाले क्वेश्चन कर सकते हो। तो स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते थे मुझसे, मैंने वो सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स करा दिए हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो स्टार्टिंग से ये इस चैप्टर की वीडियोस देखें, उनसे सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम चीजें डिस्कस कर ली हैं, बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो आप लगाएंगे, क्योंकि आप ही को लगाना है, ठीक है। मैं बस हिंट कर सकता हूं, मैं बता सकता हूं कि क्वेश्चन को कैसे लगाना है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रैक्टिस आप ही को करनी है, ठीक है। सो बाय दिस वे वी हैव फिनिश्ड आवर chapter number 10, that is straight line. In the next part of the video we will start a new chapter, that is chapter number 11, conic sections, okay. That is also very important. So in the next part we will start a new chapter and the name of the chapter is conic section, okay. So till then students, have a nice day, take care, thank you.